Good afternoon. Good afternoon, good evening, magically. Magically. Yes. Good to see you, Akila. You're back from your travels. No, I'm still in Bahrain only. Today I got time to join. So I've joined. Oh, how sweet of you to keep track of time from there. Thank you. Thank you so much. Yeah, I'm 2.5 hours behind. Okay. I read all your messages and I get myself, spiritually connected with you all. Once I go back, I'll be starting the book again with Yes. all the recordings. Yeah. So I really miss, but Thank still, you. We it's miss you okay. too. Yes, we miss you too. Yeah. तो आप सबकी जो एनर्जी आती है, मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बट आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस विथ यू ऑल दिस टाइम. इट्स ओके, आई विल बी देयर. It's okay. Yeah. So anyone, any sharings, any questions from yesterday? And if somebody did the assignment today in the morning, आज सुबह उठकर क्या आपने अपने डे के शेड्यूल को ब्लेस किया, थैंक यू बोला जो आप करने वाले हो? I did it. I had 4-5 things which I knew that's going to happen in the day today for sure. And उन सब के लिए मैंने thank you बोला. And 3 of them till now have been completed with good results. Great, great. And this exercise was only about thinking about आज क्या होने वाला है, and just be grateful for that. It will level up in the आगे, it will level up. ये same exercise आगे जाके और leveling up करेगी Rhonda Byrne in future exercises. And आज मैंने shower में किया. I did this while bathing. My scheduling of the day and giving gratitude. Now I did it in bed as soon as I got up, as soon as I woke up rather. और किसी ने करी है? Did somebody else also do yesterday's exercise? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sheetal ji. I do it every day after writing my gratitude. Wow. You write every day? No, she Yes. does it after. You write I it. write. Yes, Because you must have done the next level up before, no? yes, ma'am. That's why, that's why. Good afternoon. Good afternoon, Sunita ji. इधर के बोलो बोलने. Oh, good evening. That's hello. कुशल बुला रहा है तुमको. बुलाता है. So what are the expectations from today's chapter, today's practice? We had given some hints on the groups. अगर आप group पे messages पढ़े हो तो, what are any expectations? जो नए हैं especially, anyone who can, what are you expecting from today's chapter? और जिसने पहले किया है, why do you want to do today again? Today we are going to do the final level of relationships. अपने ये मान के चल रहे हैं. अच्छा लगता है, प्यारा लगता है. ये मान के चल रहे हैं ना कि अपने relationships में we have done our past exercises, and so today we will level up that. Just make me the co-host, please. Yeah, sure. भाग के नहीं बोलना चाहिए, बोलने से अच्छा से बोलो. Okay, so we start with the pig state. Suddenly everyone has gone silent. बीच में बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, सब बोल रहे थे, अभी सडनली सब चुप हो गए. Why? मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, I don't. नहीं ऐसा नहीं, आप ज्यादा नहीं बोलते. Listeners, so we have to No, listen. we like interaction. When it is interactive, ना मजा आता है. It does not feel like हम लोग यहाँ बैठ के कोई किया. ये आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत, मतलब आपको देख के एनर्जी सी आ जाती है आप लोग दोनों को देख के. बिल्कुल. Thank you so much.
बट आप लोग बोलते हैं ना, तो इमेजिन आप लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को और कितना अच्छा लगता है व्हेन वी गेट रिस्पॉन्सेस. So Shalini, we start with the thing, Yeah, we start the with the long peak chapter state also. first. Yeah, yeah. Can you hear the voice, Yeah, your voice is there. the music? Music का कम करते हैं, Sorry? नहीं, I said music का थोड़ा कम होने से otherwise we can't hear you. Oh, I was not saying anything right Okay, now. ठीक है. Then come on, I'll start. Okay. Hmm. You can say, I'll play the music. Run. Yes, you can do it. Let's run. Your goal is there. You're there. Bravo. Yes. Yes. You can do it. You can do it. Run. Yes. Almost there. Yes, I have done it. Yes, I can do it. So I'm planning something tomorrow. Today's last peak state. So let's do it. Come on. Yes, let's do it. Come on. Run. कल से अपने आप करना है. Come on. Let's run. Together we are running today. Bravo. Almost there. Yes. They are yours. Yes, I have done it. I have achieved it. I am the winner. Yes, I can do it. Let's all sit quietly, gather our thoughts. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. अगर कोई थॉट आ भी रहा है, आने दीजिए और जाने दीजिए. Don't force it to go. Let it just slide down your memory. Deep inhalation in and exhale out. Inhale the abundance, the blessings of the universe. I am open and receptive to the blessings and abundance in the universe. I am open. And exhale it and share it with all our loved ones, each and every human being on this earth. Spread the love, the joy, the peace. See everybody smiling with lots of happiness. सब चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं. One last time, deep breath in and exhale. हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपकी संतान हैं. हम सब एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं. हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को इतना स्वस्थ रखने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद. हमें इस किताब में लाकर ग्रैटिट्यूड समझाने के लिए, ये भरोसा देने के लिए जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद. Thank you for your belief, for your faith in us, so that we can practice gratitude each and every day. हर पल हमें ये याद रहे, हमारा हाथ थामे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया.
थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन जो ये बुक हमको समझाने में, हमको सिखाने में मददगार रही है आज तक। चाहे वो रोंडा बर्न हो, चाहे उनसे पहले लिखी गई बहुत पुरानी ग्रंथ हो, ये टीचिंग्स जो सदियों सदियों से चली आ रही है, हर एक वो इंसान के लिए हम नतमस्तक हैं जिन्होंने ये टीचिंग्स हम तक पहुंचाई। We are so grateful today. We bow down to each one of them. Thank you, God. Thank you for your energy, for your love, for your happiness, for your joy. Thank you. Thank you. Thank you. Whenever you are ready, open your eyes with a big smile, a very broad smile. That was beautiful. Really calmed me down. Rama ji, आप ready हो ना? You are reading today. ready. Thank you so much for coming forward. Thank you. Thank you. Before that, if we can just put in a word in the WhatsApp group again, na, the session has started. We will attract many more participants. I have already put the message on the group. Thank you so much. Thank you. So, हम लोग already, like I mentioned in the start, na, today's chapter is all about taking your relationships. हमने शुरू में day 3 में अपने किया था relationships को, 3 फोटो ली थी. You remember that? उनको उनके लिए gratitude. So now we are coming to the third exercise. This is also about again relationships. Rhonda समझती है बहुत important है ना लाइफ में, कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, but if your relationships are not good at home, if your relationships are not good at home, you cannot be happy. कहीं ना कहीं अपने को वो तीस रहती है ना, सब कुछ मिल जाए, but that खुशी नहीं होती है. You can manage with limited money. If you are very happy in your relationships, you still feel happy. कि I have enough for my needs, it's okay. वो डायमंड का सेट नहीं भी होगा तो भी I'm fine. वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं भी होगा तो हो जाएगा. But relationships बगैर नहीं होता है. Health is also very important. But what is the world is today running after money. We tend to give these two things second place, our health and our relationships. So the more we are in gratitude, we begin to attract more positivity. If you have been practicing or even listening, you will feel a change. ये 15 दिन में कुछ ना कुछ changes अपने को feel हुआ ही होगा. That people have become softer, or I am reacting less. A kind of calmness within you. If you have been doing, even listening, I'm saying, तो भी इतना difference तो feel हुआ ही होगा. So let us go ahead, and this is especially talking about those relationships today, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब जहाँ पे है ना, there is some खटास, जिनको याद करके मैं जब डाउन थी ना, उस समय तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे आज बहुत अच्छा चल रहा हो, बट एक वो बात पकड़ के बैठे हैं, यार उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैं उनसे 10,000 मांगी, उन्होंने नहीं दिया. इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दैट. या फिर किसी ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो, समवन डिच्ड यू, समवन रियली कॉज बिजनेस में पार्टनर्स धोखा देके चले जाते हैं या चीट कर लेते हैं. इट इज ऑल अबाउट दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स टुडे. मतलब इस रिलेशनशिप से अगर आप उभर पाओ, देन यू हैव कॉन्कर्ड इट ऑल. वो खटास अगर आप मन से हटा पाओ, देन यू हैव कॉन्कर्ड इट ऑल. सो टुडे इज ऑल उसके बारे में. यस रमा जी, प्लीज. Day 15, magically heal your relationships. Yes, so all again we are going to use this magic dust, this magical power of gratitude to heal relationships. इसमें ये फोटो दिख रही है ना, 2 इंसान हैं, बीच में लेकिन एक दरार पड़ी हुई है.
यस, कट इनटू टू। जैसे कोई गुस्सा होता है, कितनी बार नहीं होते, फोटो पकड़ के हम लोग फाड़ देते हैं उस इंसान, यू डोंट वांट देम टू बी टुगेदर। तो मतलब कोई जमाने में इतने क्लोज थे, लेकिन अब वो दरार आ गई है बीच में। सो दिस इज व्हाट दिस फोटो इज शोइंग। एंड वो दरार को ग्रेटिट्यूड से मेंड कर सकते हैं। अपने क्या बिलीफ बना लेते हैं कि जो रिश्ते एक बार खराब हो गए ना, वो वापस पहले के जैसे मिठास आ ही नहीं सकती। डोंट वी हैव हर्ड दिस सो ऑफन, एंड इट इज आवर बिलीफ। इस बिलीफ को भी कॉन्कर करना है कि ग्रेटिट्यूड से वी कैन कॉन्कर इट, वो मिठास वापस ला सकते हैं। यस, हाँ। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. तो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो जिसमें आपको, मैं जैसे आपने बात की है, खटास आई है, यू फील रिजेंटमेंट उनके तरफ है ना, उनको ब्लेम करते हैं कोई भी कि उनके कारण ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे किया। उस रिलेशनशिप को, अपने को देखिए, व्हाट वी आर मेन मूविंग इज सोल जर्नी। वी आर इसकी अगर इनकी अंदर की लाइंस में जाओ ना, वी आर टॉकिंग ऑफ आवर सोल जर्नी। डू यू वांट टू गो इनटू द नेक्स्ट लाइफ? अपने नेक्स्ट लाइफ में क्या हमें जाना है विद दिस खटास? हमारे साथ पैसा, बंगला, लोग कोई नहीं जाते हैं, बट ये मिठास या खटास जो आपके अंदर फीलिंग होती है ना, ये गोज विथ यू। ये ग्रेटिट्यूड का बैंक बैलेंस ये आपके साथ जाता है। सो दैट इज वाई, कैन यू इमेजिन इसका वैल्यू? ये वो चीज हमें पता है, ये मेरे साथ जाएगी, अगले जन्म तक जाएगी। तो ये खटास तो मेरे को नहीं लेके जानी है ना एकदम। तो उसको कैसे छोड़ू? यहाँ पे क्या करूं यार? उसकी जब याद आती है ना, मन एकदम कैसे भर आता है। मतलब ऐसे लगता है उसने क्यों किया, उसके कारण आज मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। किसी का यंग एज में कोई लड़कियों के साथ होता है, मेन से समथिंग, या दे सी मेन टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड दे फॉर्म अ बिलीफ सभी मेन बेकार होते हैं। तो these sort of things कि उस इंसान के कारण टुडे आई एम नॉट एबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, या फिर मेरे को तो जस मिलता ही नहीं है, कितना ही करूं, इस घर वाले तो मेरा एंड दिस इज विथ ऑल ऑफ अस, दिस फीलिंग ऑल ऑफ अस हैव हैड। मेरे कितना ही करूं, इस घर के लोग तो मेरे से खुश होते ही नहीं है। तो these sort of feelings are actually hurting you, और एक्चुअली आपके अंदर वो दर्द पैदा कर रही है, एंड इसको हमें नहीं लेके जाना है अगले जन्म में। तो ये जो, इनफैक्ट yesterday we had talked about open files ना, तो दिस इज अनदर, दीज आर आल्सो ओपन फाइल्स। उस इंसान के साथ एक फाइल खुला है, उस इंसान के साथ एक फाइल खुला है। ये फाइलों को आज हम बंद करेंगे। एक दिन का काम नहीं है, बिकॉज इतना इसमें दर्द या इतना घृणा या नफरत छिपी हुई है, तो एक दिन का काम नहीं है, बट आज करेंगे उसको। विल एटलीस्ट बिगिन। यस रमा जी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make up a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude
will eliminate those feelings. Yeah. So whenever we have a difficult relationship with anybody, किसी के साथ है ना, रिश्ते में थोड़ी दरार पड़ी हुई है, ज्यादातर क्या, इनफैक्ट आई विल से 100% हम यही करते हैं कि उस इंसान को ब्लेम करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, इसीलिए मैं अच्छा नहीं कर पाती हूँ उनके साथ। वो पहले नफरत की बातें कर देते हैं या खट्टी बातें कर देते हैं, तो नेचुरली मेरा रिएक्शन भी वैसे ही होगा। तो वी ऑलवेज ब्लेम द अदर पर्सन एंड हम उनके लिए वो क्या अच्छा करते हैं वो हम भूल ही जाते हैं। वो तो याद ही नहीं करते हैं कि ये उनमें अच्छी आदतें भी है, चाहे एक या दो वो क्यों ना बुरी आदत हो, कुछ बोलने का या कुछ भी, आप वो एंड आप सोचते हो वो वैसा करता है, कोई बच्चे के लिए ही समझ लीजिए कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। जिस समय वो पढ़ता है वो ध्यान नहीं जाएगा, द मोमेंट मोबाइल लेके बैठा या गेम लेके बैठा या कोई फोन फ्रेंड से बात कर, मैं बोलती हूँ ना, ये तो जब देखो मोबाइल लेके बैठा रहता है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, isn't it? बट जब पढ़ते हैं, we don't say वाह वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, ये तो देखो कितना अच्छा से पढ़ रहा है, we don't. Similarly for any other relationship, चाहे आपके स्टाफ के साथ हो, मेट को भी एक लेट आती है, मे बी यू विल कैच दैट, बट आने के बाद काम कितना बढ़िया करती है, लेकिन नहीं, हम वही पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये तो जब देखो लेट आती है, जब देखो लेट आती है। चाहे घर में हस्बैंड्स हो, वाइफ्स हो, हस्बैंड्स वाइफ की बात पकड़ेंगे, वाइफ हस्बैंड्स की, पेरेंट्स की, किसी की भी, तो वी आर सो बिजी ना उन पे ब्लेम डालना, नॉट कि मैं क्या कर रही हूँ। ब्लेम से कोई रिलेशनशिप सुधरने वाला नहीं है, एंड इनफैक्ट जितना हम ब्लेम करेंगे, हम पहले फीलिंग्स चार्ट में देख चुके हैं ना, ब्लेमिंग is below the line, it is complaining, blaming is equal to complaining, and हम जितना कंप्लेन करेंगे गड्ढे बड़े ही होते जाएंगे। मे बी एक ब्लेम से इतना, दो ब्लेम, एंड हम तो करते हैं तो झड़ियां ही लगा देते हैं ब्लेम की विदाउट थिंकिंग। तो रिलेशनशिप तो खराब होएगा ही, एंड आपकी लाइफ भी, मतलब एवरीथिंग एल्स। व्हाट डज दैट मीन? द वर्स योर लाइफ गेट्स, वो रिलेशनशिप खराब होते होते, बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग एवरीथिंग। आपकी हेल्थ, आपको लगेगा छोटे मोटे, अरे मेरे तो हेल्थ में इश्यूज आने लग गए, कहीं मनी इश्यूज आने लग गए, एवरीथिंग ऑल अराउंड। यहाँ छुट्टियों में जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया। Why? Because we have got into the mold of complaining. But मजे की बात यह है कि नाउ वी हैव लर्न, 15 दिन से हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, एंड ग्रैटिट्यूड के मसले से बहुत कुछ क्योर हो जाएगा। वी कैन गेट द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। यस, Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अब ये है ना, अच्छा क्यों आपको हटानी है वो बैड फीलिंग्स? अपनी एक बात तो कर ही लिया कि अगले जन्म में साथ नहीं लेके जाना है, बट इस जन्म में आपको क्या कर रही है दीज बैड फीलिंग्स? व्हाट आर दे डूइंग? जस्ट अ मोमेंट। ये बैड फीलिंग्स अपने को कैसे डिस्टर्ब कर रही है अपनी लाइफ को? नाउ गौतम बुद्धा ने ये बात बोली है, अगर आप अपने गुस्से को पकड़ते हो तो ये ऐसा है जैसे कोई आपने एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ रखा है। किस लिए पकड़ रखा है? उस इंसान को। आप गुस्सा दूसरे आदमी पे करते हो ना, तो एनी टाइम आपके हाथ में वो जलता हुआ कोयला है कि आप उस इंसान के तरफ उसको फेंक रहे हो, लेकिन हाथ किसका जल रहा है? राइट, खुद का हाथ जल रहा है इसमें, नोबडी एल्सेस। आप वो कोयला जब फेंकोगे, वो इंसान तो शायद झुक के निकल जाएगा। इफ ही इज इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। इफ ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, शी इज अ पॉजिटिव पर्सन, आपका गुस्सा आया एंड वो लेगी नहीं। देखो, लेना ना लेना भी अपनी चॉइस होती है,
दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ना, कोई और आपको आप पे गुस्सा कर रहा है, आप लो कि नहीं आपकी चॉइस है, वो दे रहा है आपको गुस्सा, आप उसको वहीं रोक सकते हो। विथ योर पॉजिटिविटी यू कैन स्टॉप इट राइट देयर। सो वही बात है, जब आपको किसी पे गुस्सा करना है, इट इज लाइक आप वो कोयला अपने हाथ में पकड़ रखे हो विद द इंटेंट कि मैं इसको फेंकूंगी उस पे, एंड ऑल द टाइम वी डोंट रियलाइज ये कोयला समाओ ना, वो गर्म कोयला नहीं है, जल रहा है बट गर्मी नहीं लग रही है, बट अंदर अंदर आपको जला रहा है वो। बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ। आपकी जिंदगी जल रही है क्योंकि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ये उस इंसान के बारे में नहीं है, उसने जो भी किया हो, बट दिस इज अबाउट माई सेल्फ। मेरे को अपनी जिंदगी सुधारनी है, मेरे को किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ये साइकिल तोड़ना मेरे हाथ में है, ये नहीं तो चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड आपके एक रिलेशनशिप आज आप पकड़ के बैठे हो और दूसरे रिलेशनशिप भी खराब होंगे, तो दिस विल गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज है ना आपके दिमाग में वही चल रहा है। आज सुबह किसी ने वीडियो डाला था ना, आई सेड विल टॉक अबाउट इट, कि आपके कप में अगर कॉफी है, व्हाट वाज द वीडियो, कि किसी ने ठोकर मारी, कोई कॉफी का कप लेके चल रही थी, किसी ने ठोकर मारी तो कॉफी गिरी। कॉफी क्यों गिरी? किसी ने ठोकर मारी। दैट इज नॉट द राइट आंसर। कॉफी इसीलिए गिरी क्योंकि कप में कॉफी थी। कप में चाय होती तो चाय गिरती, कप में दूध होता दूध गिरता। सो व्हाट इज इनसाइड यू, आपके अंदर क्या है? जब कोई आपको ठोकेगा, कोई आपके साथ गलत किया है, कुछ लाइफ में गड़बड़ किया है, व्हाट इज योर रिएक्शन? आप कॉफी डाल रहे हो कि पानी डाल रहे हो? इट इज अप टू अस, चॉइस फाइनली अपनी है। गलती किसी ने कितनी भी की हो, उस समय शायद समझ नहीं थी, गुस्सा आ गया, रिएक्ट कर गए, बट व्हेन वी आर मोर काम, एटलीस्ट वी कैन थिंक कि शायद उसका दिन बुरा था आज, इसीलिए मेरे पे गुस्सा कर गया, या उसकी समझ ही उतनी थी, उसने मेरे को बोला तुम साइंस छोड़ के आर्ट्स ले लो, वो अपनी समझ से बोले, एंड आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं साइंस लेती तो मैं डॉक्टर बन जाती, ये वो। सो इट इज अप टू अस, हम अंदर कप में क्या लेके भर रहे हैं। अब आज तो वी कैन डिसाइड ना, अब इस मोड़ पे हम लोग को ईश्वर लाके खड़ा किए हैं, तो वी कैन डिसाइड कि नहीं, मेरे अंदर में आई एम गोइंग टू फील ओनली काम। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। आप भी ये सेशन के बाद ही उठ के जाएंगे, किसी ने कुछ बोला गुस्सा आ जाएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिस की बात है कि मेरे अंदर मेरे को क्या भरना है। वो कॉफी निकाल के कप को पूरा साफ करके पानी डालने में टाइम लगता है, इट डजंट गेट क्लीन सो इजी। सो अपने हाथ में है कि अपने को क्या करना है, बट नाउ वी नो द रीजन। वो कोयला, जलता हुआ कोयला तो मुझे अब नहीं पकड़ना है, अब इसको ग्रैटिट्यूड से कैसे हटाएंगे, लेट अस सी। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it was not for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts for you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. One more thing I forgot to mention ना, एक जब अपने अंदर ये खरास और नफरत भरी रहती है, कैन यू सी चेहरे पे कैसे असर होता है? बिकॉज जो आदमी काम रहता है, इज ऑलवेज पीसफुल, डोंट वी सी कि उनके चेहरा मतलब उनको देख के अच्छा लगता है कि दे आर सो काम। तो अगर आपके अंदर, हमारे अंदर गुस्सा नफरत भरा हुआ है, तो वो चेहरे पे दिखता है, वो चेहरा विल नॉट लुक सो पीसफुल। उसमें फॉरहेड पे सलवटें भरी रहेगी ऑल द टाइम, एंड ऑलवेज देयर विल बी कि
बहुत मिचलाया हुआ आदमी है। अब ये एग्जाम्पल दे रही है, सपोज बिकॉज दिस इज एन अमेरिका बेस्ड स्टोरी, इंडिया में वी डोंट कनेक्ट सो वेल विद इट, जहाँ पे इस ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही है जिसमें डिवोर्स हो चुका है। ओके, तब वो ऐसे नॉर्मली ऐसे रिलेशनशिप डिवोर्स तक जब पहुंचते हैं जब बहुत खटास आ जाती है रिलेशनशिप में। ऐसे सिचुएशन में हाउ टू बी ग्रेटफुल अपने बच्चों को देख के कि वो बच्चे तो आज मेरे पास है बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर, एंड उस पार्टनर को उसके लिए कम से कम हम लोग थैंक्स दे सकते हैं। अगर आगे रोंडा बर्न विल टेक एन एग्जांपल कैसे 10 चीज निकालती है अपने एक्स हस्बैंड के लिए। तो आप जब यू डू दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बच्चे भी सीख रहे हैं। देखिए, बच्चे लर्न बाय एग्जाम्पल। वो देखेंगे ना कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब मम्मी बहुत दुखी है उस सिचुएशन में भी ग्रेटिट्यूड कर रही है, दे विल ऑल्सो लर्न कि ग्रेटिट्यूड इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लाइफ। यस। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courage, step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. तो रोंडा इज टॉकिंग, अपने पेरेंट्स की बात कर रही है कि दे वर वेरी मच इन लव, एंड इमोशनल पेन कैसे हील किया ग्रेटिट्यूड ने। जैसे ग्रेटिट्यूड करके खुशियां वापस लौट आई उनकी माँ की जिंदगी में व्हेन आफ्टर उनके पिताजी के जाने के बाद। एंड उन्होंने जिंदगी जी बहुत एक दूसरे के ग्रेटिट्यूड में, एंड दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो ऑब्वियसली व्हेन द फादर डाइड, मदर को बहुत तकलीफ हुई, एंड शी डिडंट, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीफ में थी। तो लेकिन रोंडा की माँ थी आखिर, नॉट एनीबॉडी। तो शी बिगैन टू यूज ग्रेटिट्यूड की पावर, ग्रेटिट्यूड करने लगे। एंड आप नोटिस कीजिए, उन्होंने ग्रेटिट्यूड, उनके प्रेजेंट में अभी बहुत दुख है, वो प्रेजेंट को नहीं छू रही है कि मेरा प्रेजेंट अभी अच्छा नहीं है, इसमें मेरे को अभी नहीं दिखेगा कुछ भी। तो वो पास्ट में गई, पास्ट में क्या क्या अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे टाइम्स थे, बहुत हैप्पीनेस, उन सब के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड की। देन शी टुक द नेक्स्ट स्टेप, शी लुक फॉरवर्ड, आगे देखी कि फ्यूचर में मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो उनको वो सब चीजें याद आई कि जो मैं अब कर सकती हूँ, अब मैं अकेली हूँ, अकेले लाइफ में मैं ये सब चीजें जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी, वो करने का मुझे अब मौका मिला है, वो मैं अब करूं। एंड नेचुरल, समझ लीजिए गार्डनिंग का की टाइम नहीं मिली हो, पहले घर में ज्यादा व्यस्त रहती थी, या पेंटिंग की, या फिर बाहर जाके किसी को हेल्प करने की, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो उनको अब समय मिला, अब चांस मिला करने का। एंड ऐसे करके उन सब के लिए वो अभी से
थैंक यू करने लगी। अभी से शी स्टार्टेड सेइंग डीप ग्रेटिट्यूड, वाओ आई एम, मैं एग्जांपल्स ली हूँ, आई डोंट नो व्हाट शी एग्जैक्टली डिड। थैंक यू दैट आई एम डूइंग सो मच गार्डनिंग, माय गार्डन इज सो प्रिटी, मेरे फूल इतने अच्छे खिल रहे हैं, थैंक यू, मैं लोगों का हेल्प कर पा रही हूँ, मैं रोज बाहर जाके अनाथ आश्रम में लोगों का हेल्प कर पा रही हूँ, बच्चों का हेल्प कर पा रही हूँ। जो भी उन्होंने सोचा वो करके बहुत ग्रेटिट्यूड की। एंड अपने आप जब उन्होंने ऐसे किया, उनको जाके वो अनाथ आश्रम ढूंढना नहीं पड़ा, उनके पास अपने आप ऐसी खबर आ गई, या फिर कोई गार्डनर आ गया कि मैम मेरे पास फूल है, मैं आपके गार्डन में फूल लगवा दूं, एनीथिंग, अपॉर्चुनिटी चल के आई उनके पास। एंड अगेन उनकी जिंदगी वापस खुशियों से भर गई। तो मैं उनको एक जैसे कोई नई जिंदगी मिली। तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट में ये बात बता रही है कि बहुत दुखी थी, एंड लेकिन जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड का सहारा लिया, शुक्राना का सहारा लिया, तो उनकी जिंदगी में वापस खुशियां भर गई। अब आज के प्रैक्टिस के बारे में हमें क्या करना है, लेट अस सी। रमा जी आपके लाइट गई है, एनी इश्यूज विद द रीडिंग? Can't hear you. रमा जी आप पढ़ पा रहे हैं? Let me just read a para till the time she joins in. I think her electricity is gone. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or it's a past relationship and the person is no longer in your life. Ramanji, आप पढ़ पाओगे आप? हाँ. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back think back through the history of the relationship and list the great things about the person of the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. So अपने को क्या करना है? अपने जीवन का जलता हुआ कोयला। I just remembered, I have a relation. उन्होंने मेरे को थोड़े दिन पहले ही बोला था कि भाभी I just can't forget ना 20 साल उस इंसान, 20 साल पहले, 20 या 25 साल पहले उस इंसान ने मेरे को ऐसे बोला था. I know both the people. I told him, आपको पता है उस इंसान को तो याद भी नहीं होगा उन्होंने ऐसे बोला था. He was shocked. He was literally shocked. ऐसे उस इंसान को याद भी नहीं होगा और वो इंसान आज उस सिचुएशन में शायद ऐसे नहीं बोले. वो इंसान शायद आज चेंज हो गए हैं, आज और नरम दिल के हो गए, उस समय बोले. तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट वो इंसान है ही नहीं. वो इंसान बदल के आज इम्प्रूव हो गया है, बेटर हो गया है, प्रोग्रेस कर गया है. लेकिन ये जो मेरे रिलेशन थे, ये उस इंसान को पकड़ के बैठे हैं जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. उनकी एक बात को पकड़ के बैठे हैं. एंड आई एम श्योर दिस पर्सन को याद भी नहीं होगा. इनको मैं बोलूं ना कि आपने ऐसे बोला था, अच्छा मैंने ऐसे बोला था, मैं तो कभी ऐसे नहीं बोली, बोल ही नहीं सकती हूँ कि उनका अब स्वभाव ऐसा हो गया, वो सोच ही नहीं सकती है कि मैं ऐसे बोली. लेकिन वो पकड़ के बैठे हैं. तो अपनी जिंदगी में आप ढूंढो. जरूरी नहीं है कोई इतनी छोटी बात हो, लेकिन वो बहुत नफरत से पकड़ के बैठे थे कि ये मैं भूलूंगा नहीं, उस समय उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को बहुत तकलीफ पहुंची थी
और आज भी उनके आंख से लिटरली पानी टपके व्हेन ही टोल्ड मी। कैन यू इमेजिन? तो आप अपने जीवन में देखें, मे भी थोड़ा सोचना पड़े। एंड ये बात वो रोज नहीं करते होंगे, मेरे से बात चली तो उनकी बात निकली। इट्स नॉट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट इट एवरी डे। एक ओपन फाइल थी उनकी। ऐसे कितने फाइल होते हैं? तो मे बी यू कैन स्टार्ट विथ समथिंग दैट इज रियली हर्टिंग यू, विथ सम पर्सन जिनकी बात आपको याद आ जाए, उन्होंने ऐसे किया था, या इस चीज के लिए तो चाहे आज कितना ही अच्छा हो, लेकिन इस बात के लिए तो मैं उनको माफ नहीं कर सकती हूँ। ये बात तो मेरे को आज भी दर्द पहुंचाती है। वो जरूरी नहीं है वो इंसान जिंदा हो, इट कुड बी समवन हु हैज पास्ड अवे। इट इज, यू कैन डू इट विथ एनीबॉडी। क्यों? फाइल आपकी खुली है। वो इंसान चाहे वो दर्द लेके गया, भूल के गया, जो भी गया, बट फाइल आपकी खुली है। हम खुद पे काम कर रहे हैं, हमारे खुद के अंदर क्या है। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क इट फॉर जो रिलेशनशिप जैसे पहले हमने किए, थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, उनके लिए भी आप कर सकते हैं। कि वो रिलेशनशिप भी क्यों गड़बड़ चल रहे हैं? बिकॉज वहां ग्रेटिट्यूड नहीं है। शुरू में ही रोंडा बर्न ने कहा ना ये बात, कि जहां अगर रिलेशनशिप में दरार है तो मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी है। वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल इनफ। किसी के साथ हो सकते हैं, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, कोई ससुराल में किसी रिश्तेदार के साथ, किसी के साथ, या फिर बचपन में जाके कोई स्कूल में कोई फ्रेंड ने कुछ कह दिया था दैट यू डोंट लुक नाइस, तुम कितना ही कर लेती हो ना, तुम अच्छी नहीं लगती हो। सिंपल, लेकिन वो दिल में बैठ गई वो बात। समथिंग लाइक दिस, एनीथिंग, चूज वन। आज एक बार में एक, ओके। एनी डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, ब्रोकन रिलेशनशिप, किसी कोई फ्रेंड से बातचीत छूट गई थी, अब वो अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते गई, लेकिन फिर भी उसकी याद जब आती है ना तो थोड़ी सी तकलीफ होती है कि एक मिठास दे के रिश्ता दूर हो जाते तो इट्स ओके, लेकिन कोई झगड़ा होके अलग होता है ना तो मन में एक खरास रह जाती है। ऐसा कोई रिश्ता हो तो वी विल पिक दैट अप एंड व्हाट वी विल डू, उसके साथ क्या करना है, उस इंसान के बारे में या फिर उनके साथ बिताई हुए समय के बारे में, या उस इंसान के रिश्ते से आपने क्या क्या सीखा, क्या मिला, आपको मधुरता मिली, आपको बहुत अच्छी खुशी मिली, आप बहुत अच्छा समय स्पेंड किए उनके साथ, या उनके बारे में वो कितनी स्वीट थी, वो कितनी मीठी अच्छी बातें सिखाती थी, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है वो मेरे को बताती थी। एनीथिंग, जो भी उनके बारे में 10 बातें, बहुत इजी है एक इंसान के बारे में 10 बातें अच्छी लिखना। हम लोग सोचते ही नहीं है, क्यों? जब उनकी याद आती है वो खरास वाली बात याद आ जाती है। तो ये एक मेहनत का काम होगा, लेकिन जब याद आने लगेगा ना, इट विल जस्ट फ्लो, 10 बातें ऐसे निकल आएगी। तो जब रिश्ते अच्छे थे, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो उस समय का सोचे, जब रिश्ते अच्छा था, बिफोर द रिलेशनशिप गॉट बैड, उस समय कैसे थी। एंड अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज नॉट अबाउट गलती किसने की। सबने माना गलती उसने की, यार सबको ही, मेरे सारे बाकी के फ्रेंड सब बोले गलती उसी की थी, तो मैं क्यों माफी मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उस मुक्का तो उसने मारा था, या थप्पड़ तो उसने मारा था। आई डिडंट इवन रिएक्ट, आई वाज सो गुड, मैंने तो कुछ नहीं किया। बट आपके जहन में वो बात बैठी है, इसीलिए काम अपने को खुद पे करना है। एंड यू विल नॉट नो हाउ दैट पर्सन में जस्ट कॉल यू एंड से सॉरी टुमारो। अरे यार इतने साल पहले पता नहीं, आज मन हो गया कि तुमको सॉरी बोल दूं, या फिर ऐसे दोस्ती ऑप्शन का अपन हाथ एकदम बढ़ा पहले में पहुंचे तो सबसे पहले अपन कहाँ गए? whatever. Just make me the co-host, no? I made you. अब यहाँ ऊपर तो गए वो तो फिर आगे दूसरी बस पकड़ो। ये तो मैं म्यूट कर। तो यू कैन मैजिकली हील द रिलेशनशिप। दूसरे इंसान के सामने होने की, क्या मैं तो जिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज काम हम अपने साथ कर रहे हैं, अपने दिमाग में कर रहे हैं, अपने दिल के साथ कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। किसकी गलती नहीं गलती, दैट इज नॉट द पॉइंट ओनली।
हम लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं कि किसकी गलती. All we are doing is healing ourselves and healing the relationship. Yes. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Like name, I am grateful for, and for what? ठीक है, we'll stop here once. तो every relationship में ऐसे कोई रिश्ते नहीं है जहां पे कि इस रिश्ता का तो अब कुछ हो ही नहीं सकता. हर रिश्ते में सोना छुपा है, लेकिन सोना निकालने में कभी कभी टाइम लग जाता है. कभी कभी हमें ऊपर मिल जाता है, then we are very happy. बट कभी कभी उसको निकालने में because of our own lack of gratitude, हमने ही बहुत कंप्लेन किए हैं, वो सोना शायद वो गड्ढे में चला गया, गड्ढा हमने खोदा एंड वो सोना नीचे गया. लेकिन जैसे हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, वो सोना अपने आप वो गड्ढा भर आएगा एंड सोना ऊपर निकल आएगा. तो आपको अपने को लिखना क्या है, उस इंसान का नाम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ. अब ये 10 पॉइंट्स है, इनको मैं हिंदी में ही खुद ही समझा देती हूँ. आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड इट. तो दिस इज रोंडा बर्न. हाँ, वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है कि हमारी शादी खत्म हो गई है, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमने इतना अच्छा समय साथ बिताया. आई लर्न अ लॉट, मैंने इतना सीखा. जो 10 साल हमने साथ बिताए उससे मैंने बहुत कुछ सीखा एंड उसके कारण मैं आज मेरे रिलेशनशिप्स बेटर है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने कुछ भी जिंदगी में कुछ आता है ना, अपना जो उतार बोलते हैं, तो उससे हमें कुछ सीखना है. अदरवाइज द थिंग विल कीप रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग. वही लेसन बार बार रिपीट होता जाएगा अनलेस वी देखे कि इससे मैं क्या सीख रही हूँ. यह चीज हमें है ना प्राणिक हीलिंग में बहुत अच्छा से बताया गया था कि प्लीज लर्न योर लेसन, गो बैक एंड सी. जहां मेरे को यहाँ चोट पहुंची तो मैं क्या सीख रही हूँ. अदरवाइज इट इज लाइक यू हैव टू रिपीट द क्लास, यू फेल. वो लेसन वापस पढ़ना पड़ेगा. वापस आपने नहीं सीखा, सेम प्रॉब्लम्स लाइफ में और बड़े रूप में आ सकती है. सो यू हैव टू लर्न योर लेसन. अगर आप लेसन लर्न करोगे ना, हाँ इससे मैंने क्या सीखा, तभी वो आगे क्लास में आप प्रमोट होंगे. बिकॉज रोंडा बताती है ना पिछले कि नाउ शी हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, शी इज मैरिड वेरी वेल. इसका अभी का रिलेशनशिप इतना अच्छा है बिकॉज अपने पास्ट के हस्बैंड के लिए शी इज सो ग्रेटफुल. शी इज थैंकफुल टू हिम. उनको इसलिए थैंक यू बोल रही है, आई एम ग्रेटफुल फॉर जो आपने किया, बिकॉज आप 10 साल हम साथ रहे हैं, मतलब आपने भी कोशिश की है मेरे साथ रहने के लिए. उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. अब पॉल तुमने हमको हमारे बच्चे दिए अपने, रोज उन्हें देखकर मेरे को जो खुशी मिलती है उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू. आपने इतना काम किया, चाहे ऑफिस जाके जो भी कमाने के लिए आप कमाते थे, मैं तो घर में रहती थी. आपने बच्चों को पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की, सारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. देन बच्चे जैसे बड़े हुए, छोटे थे, मैं उनके साथ थी. आप तो उनको चलता हुआ भी नहीं देख सका. पहली बार जब वो चले, पहली बार जब वो बात किए, वो मैंने देखा है. उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपको तो मौका ही नहीं मिला. आप जब मेरे जिंदगी में तकलीफ आई, दुख आया, तो आपने बहुत सपोर्ट किया मेरा. थैंक यू सो मच. मैं जब बीमार थी तो आपने, पॉल आई एम सो ग्रेटफुल, उस समय आपने बहुत केयर किया मेरा और बच्चों का भी देखभाल किया. आई एम ग्रेटफुल जो हमने इतना अच्छा समय स्पेंड किया, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. एंड आई एम ग्रेटफुल कि आज भी मैं अपने बच्चों के लिए आप फादर बन के रहना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, उनको समय देना चाहते हो. सो यू सी, अनलेस नॉर्मली क्या होता है, व्हेन अ रिलेशनशिप गोज बैड, वी स्टार्ट
we forget all this यार, we think यार इतना बुरा है, जो जो बुरी बातें हैं ना वो सब ऊपर आ जाती है, जैसे कोई हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ. We want to tell the world कि उसमें ये बुरा, उसने ऐसे किया, ये करता था, वो करता था. We forget the good things. हमें इसीलिए ये करना है कि जो भी रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली जो एग्जाम्पल ये दे रही है, इट इज नॉट फिट इनटू आवर लाइव्स, बट जो भी एग्जाम्पल जो अपनी अपनी जिंदगी में है उनको पकड़ के हम लिखेंगे. यस रमा जी. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if we need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. तो जब आप ये लिख चुके होंगे ना 10 थिंग्स, आपको ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. ये इतना तो बुरा इंसान नहीं था यार, इतनी अच्छी क्वालिटीज तो थी, 10 तो देखो मैंने निकाल ही ली, शायद दिमाग लगाऊंगी तो थोड़े और भी निकल जाएंगे. तो अपने को, लेकिन ये एक बार में हुआ है. अल्टीमेट एम क्या है कि उस इंसान के बारे में आप सोचेंगे तो वो कोयला आपके हाथ में है ही नहीं. That coal is no longer there. In fact, you feel यार भगवान माफ कर दे उसको. You start feeling compassion and mercy कि जो भी किया मैं तो माफ कर रही हूँ, ईश्वर आप भी माफ कर दो, इट्स ओके. मैं आज इतनी प्रोग्रेस कर चुकी हूँ भगवान की दया से, मेरी आत्मा में इतनी समझ आ चुकी है कि मैं आपको माफ कर सकती हूँ. A big example was the Gandhis, na? How they went and forgave the murderer of their father. Priyanka went to jail and met her and forgave her. Can you imagine कितना उसमें वो शक्ति लगी होगी, एंड पहले अंदर अपने खुद पे काम की होगी, अदरवाइज उससे जाके मिलना तो बहुत दूर की बात है. कितना अपने ऊपर काम की होगी that she reached that point कि I'm ready to meet her and tell her I forgive you. Can we bring anything, जो भी अपने अंदर दर्द है किसी के लिए, उस लेवल तक ला सकते हैं? क्योंकि नहीं तो हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं इससे. अगर आप बोल रहे हैं ना मेरे हेडेक फ्रीक्वेंट है, पाँव में दर्द है, शायद वो फॉरगिवनेस नहीं किया हुआ, वो शायद वहां अटका हुआ बैठा है, वो कोयला वहां जला रहा है, आपके घुटने को जला रहा है, आपके कंधे को जला रहा है, आपके डायबिटीज हो गया, वी डोंट नो, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, यू डोंट नो. इट कुड बी जस्ट फॉरगिवनेस करने से ये कितनी कोई बीमारी जो उस कारण से है वो ऐसे निकल सकती है. एंड हम लोग को प्राणिक हीलिंग में भी बोला जाता है that we do this practice for at least 21 days and दिन में 3 बार for 21 days, तब जाके पॉसिबल है कि वो निकल सकते हैं. रोंडा भी बोल रही है यू हैव टू रिपीट दिस प्रैक्टिस. आज आपने 10 बार लिख लिया, एक बार में नहीं निकलेगा, लेकिन आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, आपकी आत्मा की प्योरिटी प्यारी है, तो इसको कई दिनों तक करना पड़ेगा जब तक उस इंसान के लिए आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आए. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with a person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve.
तो इफ यू कोई करंट रिलेशनशिप जो आपके गड़बड़ है, अगर आप उसके लिए करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत, वो उस रिलेशनशिप में आपको चेंजेस दिखेगा. आई हैव प्रैक्टिस्ड इट 2 years बैक एंड आई प्रैक्टिस इट रेगुलरली. व्हेनेवर मैं खुद को देखती हूँ ना, आई एम गोइंग बिलो द लाइन. अगर मैं किसी को ब्लेम करना शुरू कर रही हूँ तो आई एम गोइंग बिलो द लाइन. तो I start using gratitude and immediately I see the difference. Immediately फर्क दिखता है. But to get a proper change, you have to continue to do it. अगर आप पास्ट में किसी को चूज करते हो तो आपके अंदर, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं है, दूर जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं, आपका अंदर यू विल फील दैट पीस. इतनी खुशी फील होती है, इतना हल्कापन फील होता है ना. एंड बाकी के आपके सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे बिकॉज आप कहीं से हल्के हुए. आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया जो पहले नहीं था, क्योंकि वो कोयला से भरा हुआ था ना, वो जलता हुआ कोयला भर रखा था वो जगह. जब वो कोयला आप निकाल के उसको ठंडा कर दिए, उसको हटा दिए, तो नाउ यू आर हैप्पियर. और सब रिश्ते आप और अच्छे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे. पीपल विल सी द चेंज इन यू. Yes, last para, I think. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. तो आज हमें फॉर्मूला मिल गया है. आगे जाके कहीं भी लगे ना, जैसे मेरे को, मैं बोली ना 2 साल पहले फॉर्मूला मिला, तो मैं यूज कर लेती हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ इसको. जहां भी मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है या होने लग रहा है, आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. इमीडिएटली मैं पेन पेपर उठाती हूँ एंड आई राइट डाउन द गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. पेन पेपर हाथ में नहीं हो तो कम से कम आई स्टॉप एंड आई रिपीट देम इन माई हेड अगेन एंड अगेन, नॉट वंस अ डे, ट्वाइस, थ्राइस अ डे. एंड वो डिफिकल्टी, वो रिलेशनशिप जो गड़बड़ हो रही थी, वो वहीं रुक जाती है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशंस विथ योर पेरेंट्स. उनको सॉस रिलेशनशिप कहा जाता है पेरेंट्स का. पेरेंट्स के साथ सबके मन में कभी कभी खरास रहती है. डॉटर्स के कम रहते हैं, सिंस वी कम अवे फ्रॉम देम. इन लॉज पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, मेन के पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं. मेन कैन हैव सम harass with their parents, but they are your source relationships. Even women के लिए बोला जाता है ना, if you are having difficult relationships in your life with any man, could be your son, could be your husband, your brother, be grateful to your father. That one gratitude can improve all relationship with men. Same with women, be grateful to your mother. और अगेन वो जो रिलायंस वाले अभी रिसेंटली ही उन्होंने इतना अच्छा बोला ना, शालिनी ने उस दिन याद दिलाया था, 5G, 4G, 3G is nothing. पिताजी and माताजी is what will open all your gratitude to पिताजी and माताजी. That is what is most important, most important. So your source relationships are very important. Yes, let us read our practice number 15. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for, and what. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो फर्स्ट एक्सरसाइज वही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स. आई होप ऑल ऑफ अस आर डूइंग इट एंड दिस जिंदगी भर का प्लीज कीजिएगा. एंड पॉसिबल हो तो बिफोर सनराइज करें तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है सनराइज के पहले करने से. एंड उसको री रीड करना है
इनफैक्ट ये जब सेशन शुरू हुआ है ना, उस दिन से मेरी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है, बिकॉज मैं रीड करना इम्पोर्टेंट समझने लगी हूँ उसको, कि नहीं करना ही है। पहले कभी करती कभी नहीं करती, लिख के उठ जाती कि भाई इतने काम है, ये करना है, वो करना है, दिमाग शुरू हो जाता। नाउ आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम रीडिंग एक एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड ये अपने को करना है 10 ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन जिसके लिए आपके मन में कोई भी नफरत है, या कोई शिकवा है, कोई गिला है, कोई ब्लेम है, कोई हर्ट है, उन्होंने आपको हर्ट किया। लिखना कैसे है? उनका नाम, या जो भी आप उनको बोलते थे, भैया तो भैया, व्हाटएवर, जो नाम से आप उनको पुकारते थे, नॉट उनका नाम जरूरी नहीं है, बट जो नाम से आप उनको पुकारते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं उसके लिए शुक्रिया हूँ जिसके क्या क्या किसके लिए। एंड रात को मैजिक रॉक, रात को मैजिक रॉक के पहले है ना, आप अपने ड्रीम्स भी रिपीट कर सकते हो। अब तो अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी है ना, तो पिक अप योर टॉप 3 रोज सोने के पहले रिपीट योर ड्रीम्स, अफर्म योर ड्रीम्स, and then you can do the magic rock, put gratitude into your dreams. Would everyone like to do a short forgiveness prayer? Yes, Jarur. Yeah, if everyone, Yes. so that we besides writing this na, we also get into the practice कि हाँ कैसे बैठ के हम मन में भी कर सकते हैं। This is totally taken from pranic healing. Totally, तो we can all, बट एक इंसान के बारे में आपको अभी सोचना पड़ेगा। शैला, तेरी बात मानी मैंने, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तो एक इंसान को आपको सोचना पड़ेगा। कैन एवरीवन, ऑल हु हैव थॉट कि किस इंसान के बारे में आप सोचेंगे? Either if your video is on, you can raise your hand. If your video is off, you can write a yes, please. There's 60 of us here, 61 of us. Let us all do it. कोई भी हो, कोई चाहे आपको बच्चे से गुस्सा ही आया वो हो, उसको भी आपको माफ करना जरूरी है, किसी को भी। तो जस्ट टेक दैट वन पर्सन इन योर माइंड। आप सीधा बैठ जाएं एकदम। अपनी रीढ़ की हड्डी इसीलिए सीधी करते हैं ताकि है ना, जो एनर्जी ऊपर से आती है, ईश्वर की एनर्जी ऑलवेज आ रही है नीचे, हम रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी सिट स्ट्रेट, वो एनर्जी बहुत आराम से अंदर फ्लो करती है। एक लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, जस्ट कूल योरसेल्फ। आज बहुत दिया प्रभु, आपने बहुत सिखाया, जीवन बदल गया आज से। थैंक यू। Feel the process, feel that air going in and coming out. तो सारे थॉट्स पॉजिटिव है। जो पानी का बॉटल आपका रखा हुआ है ना, कितनी पॉजिटिव बातें उसमें भरी है। हर सेशन में इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें भरती है। मैं उस पानी को पीती हूँ तो कितनी तृप्त हो जाती हूँ। I am a peaceful and loving soul. I am peaceful. मेरे अंदर अब प्यार ही प्यार भरा है। मैं बहुत शांत हूँ। आज इस शांति को मैं शेयर करने आई हूँ एक उस इंसान के साथ जिसके लिए मेरे मन में थोड़ी सी नफरत, थोड़ी शिकवा, थोड़ी गिला है। उस इंसान को अपने सामने बैठे महसूस करें, आप उनको देख के मुस्कुराएं। मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट, वो भी आपको देख के मुस्कुरा रहे। वाह, आज तो ये गुस्सा नहीं है, ये मुस्कुरा रही है मेरे पे। वाओ, आत्मा नमस्ते। उस इंसान की आत्मा से बात कर रहे हैं। हो सकते वो इंसान इस पृथ्वी पे हो न हो, उनकी आत्मा से आप बात करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आत्मा नमस्ते। मैं आपको नमन करती हूँ। हम सब इस धरती पे जन्म लिए हैं ताकि हमारी आत्मा का प्रोग्रेस हो सके। हम सब वैसे बिहेव करते हैं जैसे उस समय हम सही समझते हैं।
मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए, जो सारा दुख आपने मुझको दिया है, चाहे आपने जाने में दिए हो, जान कर दिया हो या अनजाने में दिया हो, लेकिन मुझे तो तकलीफ हुई थी। आज भी वो बात याद करके मेरे को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो मेरी चॉइस थी उस समय कि मुझे तकलीफ हुई। मैं ये बात आज समझती हूँ। आपने वही किया जो आप सही समझे, जो आपको लगा मेरे लिए सही है। ये बात भी मैं आज समझ पा रही हूँ। मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए, सारे दुख जो आपने मुझको दिए, उसके लिए आपको माफ करती हूँ। मैं दिल से, तहे दिल से आपको माफ करती हूँ। ऐसे महसूस कर सकते हैं ना, जैसे आपके अंदर वो कोयला एक काला धुआं छोड़ रहा था, वो सारा धुआं बाहर निकल रहा है। आपके रोम रोम से वो काला धुआं बाहर निकल रहा है। सारा धुआं बाहर है। अब आप में सिर्फ एक सफेद प्रकाश है, जिससे आप इस इंसान को भी भर रहे हैं। आप बहुत शांति में हो, मैं भी बहुत शांत हूं। ईश्वर हम दोनों को बहुत शांति दे, बहुत शांति दे। आप महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान बहुत खुश होके, आप बहुत स्माइल करके, हंसते हुए कि आपने उन्हें माफ कर दिया है, वो दूर जा रहे हैं एकदम खुश। और आप खुद कितना हल्का महसूस कर रहे हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब एक स्टेप बाकी है। सारी गलती तो सामने वाले नहीं करते हैं ना, चाहे उनके रिस्पॉन्स में या फिर पहले ही हमसे भी गलतियां होती है। हम उस समय समझ ही नहीं पाते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। कभी कभी तो जानकर भी गलती कर देते हैं। उसी इंसान की बात हो रही है। उस इंसान के साथ मैंने क्या क्या किया, मैंने उनके बारे में बुरा सोचा ना, वो गलती तो मुझसे हुई। चाहे कुछ बोली नहीं, कुछ की नहीं, पर बुरा तो सोचा। मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। मैंने उस समय वैसे ही किया जो मुझे समझ आया। मेरी नादानी थी, ना समझ थी मैं। हम सब इस जीवन में इंसान को, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने आए हैं, ईश्वर के तरफ बढ़ाने आए हैं। एंड इस रास्ते में हमसे गलतियां हो जाती है। मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। आप भी मुझे प्लीज माफ करें। ऐसी सिचुएशन फिर आए तो अब मेरा रिएक्शन नहीं होगा, अब मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, समझ कर रिस्पॉन्ड करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माफ किया। हे ईश्वर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम दोनों को ये शक्ति दी कि हम एक दूसरे को माफ कर सकें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक वाइड स्माइल ऑन योर फेस, फीलिंग सो हैप्पी। इतनी खुशी भर गई है जीवन में। ये तो एक इंसान का के साथ करने में मुझे इतनी खुशी, इतना हल्कापन। जो सारे गड्ढे हैं, जितने रिलेशनशिप है, सबके साथ में कर रही हूँ। ईश्वर ये शक्ति मुझे दो। आप इमेजिन करें कि वो इंसान आपसे, कोई डोर जो बंधी हुई थी ना उनसे, वो डोर अब कट गई है। वो इंसान खुश होके अपने जीवन में जा रहे हैं। अगर वो आज भी आपके जीवन में है तो वो आप इसी जीवन में आपके साथ रोज भी है,
तो भी बहुत खुशी से आप दोनों रह रहे हो। आप दोनों के बीच में सिर्फ प्यार है, कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ सेकंड और इमेजिन करने में कि कितने खुश और कितने हल्के हो गए हैं आप। वो इंसान भी कितने खुश हैं। When you are ready, just open your eyes slowly with a big, big smile. Yes. For a few seconds अभी बोलने का मन नहीं कर रहा. I want to just feel that peacefulness. ये इतनी ग्रुप एनर्जी है, इतने लोग साथ में कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन? जस्ट फील, आप कोशिश करें, यू विल फील दैट एनर्जी. ग्रुप एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है. Yes, so you can do it every day. It was very simple. पहले हमने माफ किया, तब हमें हक मिला कि कोई हमें भी माफ करेगा. पहले देना पड़ता है ना, फिर मिलता है. तो पहले आप माफ कर, जो भी आप बैठो, it needn't be the same language. Language can be anything. बट फीलिंग वो होनी चाहिए कि आप माफ कर रहे हो और आप माफी मांग भी रहे हो, अपनी गलती मान रहे हैं. Yes. So anyone has any sharing to do? Anything to say? मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत बहुत अच्छा लगा और अभी और आगे भी और अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. Thank you for your beautiful reading. आपने बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत क्लैरिटी के साथ. थैंक यू. Thank you so much. Aarti ji, your hand is raised. You have anything to say? गुड इवनिंग मैम. Good evening. बोलिए. मैम मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे थे कि कोयला किसी पे नहीं फेंकना है, राइट? हम कोयला नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन जो हम पे फेंक रहे हैं, हम उससे बच रहे हैं, तो उसमें बचने में ही हमारी काफी एनर्जी जा रही है. हम किसी को माफ कर रहे हैं, हम किसी के लिए जो भी कर रहे हैं, हम उसका लॉजिक लेकर अपने आप को समझा रहे हैं, लेकिन थक जाते हैं मैम. मतलब बॉस के साथ आप कितनी वाइब्स भेज दोगे? Gratitude will give you that energy कि कोई आपके ऊपर कोयला फेंके ना. It will take time. ये देखिए, ओवरनाइट नहीं होगा. 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं. बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति, लाइक उस दिन बात किए ना, वो एक कवच बना देते हैं अपने चारों ओर. फिर कोई कितना ही गुस्सा फेंके, यू विल फॉरगिव. आपने कहा कि आप कोयला फेंक रहे हो और अगर सामने वाला पॉजिटिव है तो वो बच निकलेगा. तो मेरे साथ पर्सनल ये हो रहा है कि हम बच निकलते हैं, लेकिन हम हर वक्त अलर्ट नहीं हो सकते. तो कभी ना कभी फेंक रहा है दूसरा, लेकिन असर हम पे तो हो रहा है ना मैम. तो वही तो अवेयरनेस, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ अगेन एंड अगेन ना. ये अवेयरनेस हमें आनी पड़ेगी कि, एंड अगर आ भी रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि कहीं मैंने पीछे में गड्ढे खोदे हैं, उसका मेरे को रिजल्ट मिल रहा है आज. आरती जी गायब हो गई. Yes, ma'am. ओके. तो मतलब उसका मेरे को, तो ये तो सिर्फ मेरे को अपना, जैसे होता है ना, मैंने सब्जी कल पकाई थी, वो पकी हुई सब्जी मेरे को आज दे रहा है. कहीं ना कहीं मैंने ये बीज बोए हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये यूनिवर्स इसके थ्रू मेरे को दे रहा है. अपने क्या करते हैं, उस एक्शन को तो भूल के उस इंसान को गाली देने लग जाते हैं. ये एक्शन मेरे पास क्यों आया, ये मेरे साथ आज क्यों हुआ. That is your lesson to be learned. And if we don't learn the lesson ना, that's why we say कि वापस ये बार बार फिर आपके ऊपर कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा.
बट कहीं ना कहीं ये लेसन लर्न करके हमें अपने पीछे जाके ये फॉरगिवनेस इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने यस शालिनी you continue, then I will continue. बोलो। नहीं, मैं ये बोल रही थी, अगर हम ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फ्रीक्वेंसी है, आज भी है। एज ऑफ नाउ वी आर वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी, तभी हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। नहीं, सम रिलेशंस होते हैं ना, जैसे अब चलो मदर इन लॉ को भी हम एक टाइम पे टैकल कर सकते हैं, लेकिन जो बॉस होता है उसके साथ हम किस लेवल, वो तो हमें किसी ना किसी टाइम पे ग्रिल कर ही लेगा। हम कैसे बच सकते हैं? कभी तो हमसे गलती होगी पूरा दिन में या तो 2 दिन में। जब हमसे गलती हुई तो हमको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर उस मिस्टेक को 10 लोगों की मिस्टेक को, सेम एक्टिविटी को नोटिस नहीं किया जा रहा, लेकिन सिर्फ आप ही को नोटिस किया जा रहा है और एस्केलेट की जा रही हैं चीजें, तो वहां पे मतलब हम कैसे वाइब्स दें? ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉस, टोटली ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉस। और 10 लोगों के साथ अगर सेम मिस्टेक्स के साथ उनका बिहेवियर अलग है और आपके साथ बिहेवियर अलग है, तो झांकना आपको आपके अंदर है। मैंने तो झांक कर ये कंक्लूजन निकाला कि बिकॉज आई एम ओवर ग्रेटिट्यूड, दैट्स व्हाई अदर्स जो है वो फटाक से जवाब दे देते हैं या एचआर को कंप्लेंट कर देते हैं, तो दे आर लाइक कि नहीं, चीजें हाईलाइट हो जाएंगी और उनको पता है कि आई विल नॉट से एनीथिंग। डॉन्डा बर्न ने हमेशा बोला अपने आप को, आपको जो प्रोटेक्शन के लिए, खुद के लिए, अगर आपको अपना मतलब टू पुट योर, टू कीप योरसेल्फ सेफ, जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है, वो गलत नहीं है, राइट? नहीं, टू सेफगार्ड योरसेल्फ कैसे गलत है? ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। बट देयर शुड बी नो नेगेटिविटी इन दैट। एंड सामने वाले को एक सबक सिखाने के हिसाब से आप कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, देयर शुड बी नो नेगेटिव। एंड अभी आपने एक बात बोली ना, मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ तो मेरे को ही सुनना पड़ रहा है, तो आपका अभी तक ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड ही सही नहीं आ रहे हैं ना, आपकी तो वही कंप्लेन आ गई कि मैं ग्रेटिट्यूड में रह रही हूँ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। मतलब दैट शोज आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो। तो प्लीज यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, उसमें मैच नहीं हो रहा है। And to protect yourself is not being ungrateful to another person. okay, okay, thank you very much. And if you're intentionally harming the other person, तो आपको No, पता है कि आपके हाँ. intentions क्या हैं. हम्म। You know what your intentions are, and nobody else can know what you feel most as what you know. Yes. Thank you very much. Okay. Any other questions on today's session? And please कीजिएगा ये, please. दिव्या, आपने अपना नंबर फॉर एनी रीजन डाला है चैट पे? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करने के लिए। ओके, ठीक है। एंड अनदर थिंग आई हैव रिटन डाउन ना, अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है, अपने बहुत कोई और कहानी बोलते हैं, अच्छा सुनो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था ना, उस इंसान ने ऐसे किया था 10 साल पहले, इवन इफ यू आर फीलिंग लाइक टॉकिंग अबाउट इट, दैट मीन्स यू हैवंट फॉरगिवन द पर्सन। मन ही नहीं करेगा, जब आप माफ कर देंगे ना, वो किस्सा को ही आप भूल जाओगे, या याद भी रहेगा नहीं, यू वोंट फील लाइक कि मैं जुबान पे भी क्यों लाऊं। That is one very nice test which ये self experience से मैंने लिखा है कि you don't feel like talking, क्योंकि उसका कोई अब उसका कोई वजूद ही नहीं है, it is like non-existent. मेरे साथ हुआ है ना, since the time I have started practicing, I had a very challenging relationship. मेरे बहुत close relationship में challenges थे मेरे पास, and it is like मेरे own relationship में है. You can't go away from, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के चले जाओ, आप कुछ मतलब you can't get away with this. Universe आपको भेजा है वो relationship
तो मे बी आपका कोई ना कोई फाइल, जैसे सरिता भाभी बोल रही है ना, आपका फाइल खुला रह गया था उनके साथ। तो हमारे सारे क्लोज रिलेशनशिप होते ही वैसे हैं जिनके साथ हमारी फाइल्स खुली हुई हैं, जिनके साथ हमारा लेना देना बाकी है, स्पेशली आवर पेरेंट्स, आवर हस्बैंड, आवर चिल्ड्रन, जो हमारे इन लॉज होते हैं, जो रिलेशनशिप बाय बर्थ मिलते हैं ना हमको, दोज आर द ओपन फाइल्स। तो वन ऑफ सच रिलेशनशिप्स में मेरे को चैलेंज था, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। उसके कारण पैल्पिटेशन भी होता था, उसके कारण इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन में रहती थी मैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सी नाउ अगेन आई एम गॉन इनटू द डीप डाउन लाइंस एक्सप्लेनिंग यू कि क्या था वो। तड़के मत लगाओ, अरविंद साहब बोलते हैं ना यहाँ पे, तड़के मत लगाओ। यस, सो बट जब से मैंने ग्रैटिट्यूड फॉलो करना सीखा, उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखा, द सेम रिलेशनशिप इज देयर, सेम बंदे हैं, सेम लोग हैं, सेम एनवायरनमेंट है, सेम इंटरेक्शन होता है, बट मेरा नजरिया बदल गया। मेरी बातचीत, सेम बातचीत होती है लेकिन बोलने का तरीका बदल गया, समझने का तरीका बदल गया। The इंसान may not have changed, but I feel my perspective has changed. I have एक खुद में भी होता है ना, आप खुद को सही समझते हो, सामने वाले को हमेशा गलत समझते हो। बट लाइक जब मैंने फर्स्ट डे भी यही कहा था कि सिचुएशंस चेंज नहीं हुई है, लेकिन आई एम फीलिंग लाइट, वो आप घर पे कर सकते हो, लेकिन ऑफिस में अनप्रिडिक्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। वहां पर भी सेम बात है, सेम बात है, इट इज द सेम। पैकेट में कठी And also, like Shalini is saying, na, most, and did we know we choose our parents? कभी कभी बोल देते हैं ना, ऐसे घर में क्यों पैदा हो गई, why did I get such parents? But we choose our parents before, बस भूल जाते हैं, before we take birth, because अपने आत्मा की प्रोग्रेस के लिए आपको जो चैलेंजेस चाहिए ना, वही चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं, वही भाई के रूप में आ जाता है, बहन, कभी कभी भाई बहन में या दो भाइयों में इतना रिश्ता गड़बड़ रहता है, क्यों? यही तो लेसन लर्न करना है। इफ यू कैन ओवरकम दैट, तो नेक्स्ट जन्म में नहीं मिलेगा वो बंद जिससे आपको ज्यादा नफरत है ना, प्लीज उनके फाइल्स बंद करो, नहीं तो अगले जन्म में और बड़े रूप में और गड़बड़ बन के आने वाला है वो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके साथ गड़बड़ है, साथ बोला जाता है ना, आई थिंक 7 जन्म का, बिकॉज उनके साथ तो हम लोग कभी क्लीन करते ही नहीं है, इसीलिए वो जन्म 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 द सेम पर्सन कम्स। एंड दिस टाइम इफ वी ब्रेक रिलेशनशिप एंड मूव अवे ना, कि ये इससे तो अब मुझे नाता तोड़ के आगे चलना है, ये झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपको ऐसा और कोई अलग सा मिल जाएगा जहां और डिफिकल्टीज आएंगी आपको, क्योंकि आपने वो लेसन लर्न करना ही करना है। जैसे एक एग्जाम में फेल हुए तो हमको अगर क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोट होना है तो फाइनल एग्जाम तो पास करनी पड़ेगी। सेम इज, आप पेपर पे पेपर देते जाओ, यूनिवर्स आपको एज अ मदर फादर वो इतने स्ट्रिक्ट है आपको इवॉल्व करने के लिए, आपकी बेहतरी, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, कि हमको टेस्ट पे टेस्ट देते जाएंगे। सो टेस्ट से भागने से कोई फायदा नहीं है, वी हैव टू पास आवर टेस्ट। So this was a very, very beautiful chapter by, thank you Ramaj. Rhonda Byrne बहुत कुछ सामने ला देती है इस चैप्टर में ये। So tomorrow we have another chapter. And अभी एक और चीज याद आ रहा है, we need to pay gratitude to our difficult relationship to teach us, give us that opportunity to learn our lessons. वो अपना कर्म खराब करके हमें लेसन सिखा रहे हैं, अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो वो तो अपने बीच बो रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो हमें तो और उनके लिए कंपैशनेट होना चाहिए और उनके लिए ये चीज हम प्रेयर में बोल सकते हैं। क्या चीज? कि आप अपने कर्म खराब करके नहीं, आपको नेगेटिव वर्ड क्यों बोलना है प्रेयर में? आपको नेगेटिव, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, प्रेयर में कैसे बोल सकते हैं? आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि आप आए मेरी जिंदगी में, आपने आप अपनी जगह मेरी जिंदगी में आए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। आप उतना बोलिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड की आप लेसन सिखा रहे हो, आप मुझे कुछ सिखाने आए हो, ये सब बोलने की हमें क्यों जरूरत है? ये सिर्फ हम लोग भी खाली समझने के लिए बोल रहे हैं ना, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग कम्स। किसी ने हमें बताया तो वी अंडरस्टूड इट, तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस डॉक्टर आरती, बहुत चीज क्लियर होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Okay, so tomorrow we should we
before shutting down, should we clap? Oh yes. जाती। आज स्नोरिंग का इशू भी खत्म करते हैं, जो भी रात में शैला तो रेडी snore टू करता गिव ऑलवेज। चल करा तू। है। स्नोरिंग कौन कौन करता है रात को? लेट मी नो। मेरे जब सर्दी लगती है तब करती हूँ। Train वाला snoring. My husband recorded and he made me listen to it. और हम लोग जब बेंच गए थे ना, अभी नागपुर गए थे, तो शालिनी सेड मेरे कमरे में कोई नहीं सोएगा। आज स्नोरिंग खत्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप स्नोरिंग का, आपको रात को सोने से पहले आपको टंग 5 टाइम्स निकालना है। काली माई। सेकेंड स्टेप, आपको टंग ऊपर की तरफ रोल करना है। देखो मैं स्नोरिंग नहीं करती ना, इसलिए आवाज भी नहीं आ रही। आवाज आती है। स्नोरिंग वाले क्या? शालिनी सुना तो। शैला फिर क्या आपको आवाज ऊपर- आती है? देखो ना, जब आपकी टंग ऊपर लगती है, टच होती है, तो आवाज आती है टक टक की। फिर आपको ऊपर देखते हुए करना है। ऊपर से फिर आवाज आपको आती है। रात को सोने से पहले अपनी टांग को इधर उधर सारा रोल अप करना है। थ्री स्टेप्स मैंने बताए। लास्ट स्टेप, ये आपका हाथ है, आपके नोज के पास रख के यहाँ पे जहां मिडिल फिंगर टच हो रही है, यहाँ पे प्रेस करना है। इधर प्रेस करते हुए ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4 steps to follow. I hope सबको समझ आया होगा। एक बार आप अब तो रिपीट करिए। अब तो चेहरा अब तो ऊपर शालिनी करके जी बंद करने वाली है अपनी स्नोरिंग, ऐसे चिढ़ाते हुए। शैला, can you just talk about the roll जब करते हो ना टंग, वो एक बार प्लीज बताना। तो इसको आवाज आती है। ये तो इंटेंशनल आ रहा है आवाज। हाँ, अगर ये नहीं- टंग ऊपर, ये टंग रोल अप होके ऊपर टच होती है। फिर जब आप टक करते हो ना, तो आवाज आती है। देखो, आप ट्राई करो। ये अगर आप इंटेंशनली आवाज करो तब आती है, नहीं तो नहीं आती है। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपकी टंग ऊपर रोल अप होनी चाहिए, ऊपर टच होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपको ऊपर देखते हुए फिर रोल अप करते हुए करना है। यस 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 यस। और फिर आप पूरा रोल अप करोगे मुंह बंद करके। अगर ये सारे स्टेप्स नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको अपना ये पाम लेना है, यहाँ पे नोज रख के थर्ड फिंगर, मिडिल फिंगर जहां टच हो रही है, यहाँ पे आप 1 मिनट तक प्रेस करोगे। 1 मिनट तक प्रेस करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे, और 30 डेज में स्नोरिंग गायब, स्नोरिंग खत्म। भैया को सबसे बड़ा गिफ्ट। हाँ शालिनी जी, Yes, भैया and को I सबसे बड़ा गिफ्ट। the entire credit will go to you. पूजा Oh, पूछ रही है thank how you. many times शैला? 1 मिनट, ये पॉइंट तो 1 मिनट करना है, और बाकी सब 5 times each ना? बाकी तो 5 टाइम्स। और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है आपको, जब आप यहाँ पे यहाँ प्रेस होल्ड करोगे। करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है हाँ बस। जी, हाँ जी। प्रेस तो ये करना है। चला जाता है, स्नोरिंग चला जाता है। और सेकंड पॉइंट, डिहाइड्रेशन। कैसे चेक करना चाहिए कि आप हाइड्रेटेड हो या डिहाइड्रेशन? आपके ये फिंगर्स है, ये देखो, ऐसे प्रेस करके देखना। अगर ये फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब
आप हाइड्रेटेड हो, नहीं तो डिहाइड्रेटेड है। ये ऊपर ही रह जाता है, तो देख रहे हो, ये देखो ऊपर रह गया। मेरा भी ऊपर रह गया। हाँ, मतलब इसका मतलब dehydrated। आपने आज सुबह से पानी कम पिया। शालिनी जी, मैंने किस भी किस का चेक करिए, चेक करते रहना अपने फिंगर्स में ना, तो वो बताता है एज फिंगर्स। के बाद तो ऐसे भी हो जाता होगा शैला। आप नहीं, नहीं, रिपीट कर चेक सकते हो करो, प्लीज? रिपीट कर सकते हो फ्लैट हो प्लीज? जाता है। ये देखो आपके हैंड्स है, ये ऐसे प्रेस करके देखो, ये देखो ये ऊपर ही रह गया अभी। इसका मतलब डिहाइड्रेटेड हूँ मैं। वो जो स्किन को लोग नहीं pinch है करना है, उसका फ्लैट skin- हो जाता है। कल किसी का इश्यू था कि डाइजेशन इश्यूज है, नी इश्यूज मेजर लोगों को रहती हैं, एल्बो जॉइंट इश्यूज बहुत सारे लोगों को रहती है। तो जब आप ऐसे टैपिंग करते हो 1 2 3, ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट ठीक करता है, ये पॉइंट्स है। तो आप जब ऐसे क्लैपिंग करते हो, तो आज हम ऐसे क्लैपिंग करेंगे, थैंक यू बोलते थे शालिनी जी को, सरिता इतना जी को। वो 100 कर इतना सकते हैं अच्छा, इसको। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, मैंने कर सकते हैं, 30 का सुना। कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसके आ रहे हैं वर्ब्स इतने जोर जोर से? हाँ, वही किसी के बहुत असर हो जाए। Thank you, 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 thank you। हम रब करते हुए, हम टाइटली रब करेंगे और आपके पाम में हीटनेस आनी चाहिए। उसके बाद हम बोलेंगे, मैं सत्युग की आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। आपको पता है सत्युग की दुनिया बहुत खुशियों की दुनिया, हमेशा पूरा खुशी खुशी। हम पहले ब्रह्म कुमारी जाते थे, हमको बताया जाता था कि सत्युग की दुनिया ऐसी दुनिया है, वहां पे हॉस्पिटल नाम की कोई चीज ही नहीं है। सभी लोग इतनी खुशी से जीते हैं और सबकी आयु 150, सबके घर महल जैसे घर रहते हैं, सब इतनी खुशी से रहते हैं। तो क्यों ना आज से हम प्रण लेते हैं कि ये बोलना है कि हम सत्युगी आत्मा है। तो हम फिर से रब करेंगे, रब करते हुए बोलेंगे, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। थैंक यू शालिनी जी, इतना अच्छी क्लास करवाती हैं। थैंक यू सरिता जी, इतनी अच्छी क्लास करवाते हैं। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स जो हमको सुनते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक लास्ट टाइम रब करेंगे, रब करते हुए हम बोलेंगे, मैं सत्युग की आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैजिक बुक मेरे रोम रोम में समा गया, ग्रैटिट्यूड मेरे रोम रोम में बस गया। बस मैं हर बार उस परमात्मा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हर पल हर श्वास में तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शैला जी। Thank you. Thank you. Thank you so Thank you, Shaila much. ji. Thank you, Thank Shaila you. ji. Everyone, let's have one Thank big you, round everyone. thank you, for Shella. Thank you, Sarita ji. Thank you, Shalini thank ji. you, Thank you. thank you.
आपका Shailaji, परिवार for cramps, बहुत can you खुशी tell से me? रहे। हाँ जी, Shailaji, यस, one question please. मेरे को हाँ क्रैम्प्स जी, आते हैं, क्रैम्प्स का भी कुछ है? हाँ है ना। आप पूरे पैरों की टैपिंग करवाऊंगी म्यूजिक के साथ, तो क्रैम्प्स पूरे ठीक बंद हो जाएंगे आने वाले ठीक है, मुझे सेशंस में। नींद में, हाँ ओके, थैंक हाँ, यू सो मच। मुझे आने वाले नींद में भी सेशंस। उठना पड़ता है, इतने तेज क्रैम्प्स आते हैं। तो आज आप अपने पूरे पैरों को ना मसाज करके सोना, अपने फीट को। मैं बताऊंगी कैसे करना है आपको। अपने ये फीट है आपके, इसमें ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के इसको ऐसे प्रेशर पॉइंट, दिस इज योर ब्रेन पॉइंट। तो आप जब इसको मसाज करते हो ऐसे, एक तो क्रैम्प्स आना बंद हो जाएंगे और नींद भी इतनी अच्छी आएगी, एकदम मस्त सोएंगे। रात को सोने से पहले वॉशरूम करके अपने पैर धो लेना है। पैर धोने के बाद अच्छे से उसको रब करके ऑयलिंग मसाज करना है। ऑयलिंग मसाज करने के बाद आप क्या करोगे, इसको टैपिंग करोगे ऐसे। पूरे पैर को